now we have to discuss properties of conjugate of complex number. So complex number, we know that any complex number z is always in the form of a plus ib, real parts plus imaginary parts. Here, real z, real z is nothing but the बाद में देख लेंगे सर. Imaginary z equal to b. Done. So for this complex number z is equal to a plus ib, real z is a, imaginary z is b. This is real part. This is real part, and this one is imaginary part. Done. ये डिस्कस किया था. Conjugate of complex number z is represented by this z bar. है ना, conjugate बोलते, conjugate of z bar. So what you have to do to find the conjugate of any complex number? You have to change the sign of imaginary part. Here imaginary part is ib, and the sign of this ib is plus. So to find the conjugate of this complex number, we have to change the sign of this imaginary part. That means you have to change this plus sign into minus sign. So conjugate is a minus ib. Done. So this is the conjugate of our complex number, and we have to discuss the property of this z bar. क्या स्टडी करना है? Z bar. So let's start with the property number 1. First property. First property says that जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दो, है ना. Z bar. So conjugate of conjugate. बारी बारी से दो बार वो अब अप्लाई करेंगे. सपोज यहाँ पर Z था, इसका कॉन्जुगेट निकाला तो प्लस का माइनस कर दिया. अभी सपोज फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी जो साइन है उसको चेंज करेंगे तो फिर से प्लस आ जाएगा. फिर से प्लस मीन्स वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ. क्लियर? अंडरस्टूड? खुद ही अंडरस्टूड है, इसमें कुछ नहीं है, है ना. Z था तो a प्लस आई बी, Z बार था तो a माइनस आई बी. अगेन Z बार ऑफ बार तो माइनस का प्लस, तो ये आ जाएगा Z. प्रॉपर्टी नंबर 2. If we add z and z bar, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे ना तो क्या होगा, इट्स ट्वाइस ऑफ रियल z. z प्लस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल z. कैसे हुआ देखो, यहाँ पर z क्या था हमारा, a प्लस आई बी, कॉन्जुगेट ऑफ z इज a माइनस आई बी, और z प्लस z बार करेंगे तो a प्लस a 2a माइनस आई बी प्लस आई बी 0. So it's a 2a. What is a? A is real of z. So it's a twice of real z. So z plus z bar is equal to twice of real z. Clear? Z plus z bar is equal to twice of real z. So now इसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी में आएगा z माइनस z बार, है ना. नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का एडिशन ट्वाइस ऑफ रियल z आएगा. और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इसका सब्ट्रैक्शन करो तो क्या होगा, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी. तो दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी. प्लस है माइनस है कट, ट्वाइस ऑफ आई बी, ट्वाइस ऑफ आई बी. इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई को आगे लिखेंगे और 2b, और ये 2 क्या है हमारा, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी z. सो z माइनस z बार, z माइनस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ i इंटू इमेजनरी ऑफ z, ट्वाइस i इंटू इमेजनरी z. So that is your property number 2. Understood? Third one, third property. If complex number z and its complex conjugate both are equal, if z is equal to z bar,
It is only possible when Z is purely real, ना purely real complex number. Then and then Z is equal to Z bar, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या होता है, इसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है ना, लेकिन इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो क्या होगा, जैसे होगा Z इज इक्वल टू ए प्लस इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, है ना, प्योरली रियल नंबर हमने डिफाइन किया था, प्योरली रियल नंबर मीन्स इमेजनरी पार्ट इज जीरो, सो आई इज जीरो, है ना, दैट मीन्स जीरो ही है, तो Z बार निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस आई जीरो, तो दिस इज ए एंड दिस इज ए, so this Z is purely imaginary number, sorry, purely real number. For purely real number, imaginary part is zero, so Z is equal to Z bar, number and its complex conjugate both are equal if our complex number is purely real number. Done. Fourth property, Z plus Z bar, the sum of complex number and its conjugate will be zero. कब होगा zero बोलो, when Z is purely imaginary, है ना, purely imaginary means real part is zero, so Z is equal to real part zero, zero plus IB, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, Z बार, Z बार क्या होगा, इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है, तो इट्स जीरो माइनस IB, जीरो प्लस IB मीन्स IB एंड जीरो माइनस IB इज माइनस IB. अब दोनों का एडिशन करो, Z प्लस Z बार, ये क्या होगा, IB माइनस IB जीरो, so Z plus Z bar equal to zero only when Z is purely imaginary number. 3 and 4th property में कोई प्रॉब्लम, then important property that will be used in our maximum sum, that is property number 5, है ना, so that is, ये हमने देखो एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, नाउ Z into Z bar, multiplication of complex number with its complex conjugate, so that will be equal to, है ना, it will be always equal to real Z whole square plus imaginary Z whole square. What is the meaning of real Z? Real Z is A, that is equal to A square plus imaginary Z is B, A square plus B square. क्या, Z into Z bar, Z into Z bar is always equal to A square plus B square, real Z square plus imaginary Z square, है ना, देखो कैसे आया है, so Z into Z bar equal to, what is our Z, complex number Z is equal to A plus IB, A plus IB multiply Z bar conjugate of Z which is A minus IB, A minus IB. अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, सो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, A plus B, A minus B, first term square minus second term square, so first term square is A square minus second term is IB square, डन, सो दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर का तो A स्क्वायर होगा माइनस ये IB का स्क्वायर होगा I स्क्वायर B स्क्वायर, हमने पावर ऑफ I स्टडी किया है, हमारा I क्या होता है, I इज आयोटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसका हम स्क्वायर करेंगे I स्क्वायर तो होगा -1, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये होगा प्लस, तो दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर plus B square. What is A? A is real Z. What is B? Imaginary Z. So we can say that our Z into Z bar equal to A square, which is a real Z square plus B square. B is imaginary, so it's a imaginary Z square, है ना, ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम सम में यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5. क्लियर, so these are the some important properties and some more properties जिसको अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो भी आप उसको समझ जाएंगे, तो उसको हम सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं. सो प्रॉपर्टी नंबर 6,
property number 6, in which we are given that if two complex numbers are in division, so conjugate of two numbers are in division, so z1 bar z2, that is nothing but the z1 bar upon z2 bar. Seventh property, if two complex numbers are in multiplication, z1 z2 multiplication, and their conjugate is nothing but the z1 bar into z2 bar. Eighth property, z1 plus z2 whole bar is there, that is equal to z1 bar plus z2 bar. Ninth property, z1 minus z2 whole bar equal to z1 bar minus z2 bar. डन. किन लोगों को समझ में नहीं आया? है कोई? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमारे रियल नंबर में है ना, वही. सपोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z1 with z2 plus z3, that is known as distribution of multiplication or addition, है ना. कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन. तो दिस इज इक्वल टू हमारा एक्सपांशन जो था ना, वही z1 z2 प्लस z1 z3. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है. z1 z2 माइनस z3, that is equal to z1 z2 minus z1 z3. Done. Now next is division of two complex numbers. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करना है. ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है. अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे. इट इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा. नाउ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. डिवीजन करना है ना. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करें ना. डिवीजन तो होता है z1 बाई z2, लेकिन वो z1 बाई z2 कैसे करना है. तो फॉर एग्जाम्पल और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज 6 plus 3i and the second complex number z2 is 2 minus i. Two complex numbers are given and we have to perform division, that is z1 by z2. z1 को डिवाइड करना है z2 से, तो कैसे करेंगे. सो z1 is 6 plus 3i and z2 is 2 minus i. मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है. बोलो क्या करना है. रेशनलाइजेशन आपने स्टडी किया था, तो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको कुछ दिमाग में आया है. तो जो रेशनलाइजेशन करते थे ना, वही हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर रहे हैं ना. रेशनलाइजेशन करते थे ना स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स. साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर वही करना है. हम साइन चेंज करके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट. और वहां पर हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर करते थे. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. डिवीजन करना आ गया सबको. कैसे करना है? डिवीजन में आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो नंबर का आपको निकालना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो साइन है ना, उसको चेंज कर देना है. वो जो नंबर मिलेगा वो नंबर से आपको अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. दैट इज योर डिवीजन. उसके बाद आपको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करना है. तो क्या होगा? 6 plus 3i upon 2 minus i. Now what is the complex conjugate of this denominator? It's a 2 plus i. So multiply numerator and denominator with 2 plus i. Done. अभी इसका मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ. तो यहाँ पर ऊपर आपको एक्सपेंशन ही करना है. तो क्या होगा? 6 2 12, 6i
6i, 3 to the 6i, 6i, 3i into I प्लस 3i स्क्वेयर। डन। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 - i 2 + i, फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म स्क्वेयर, 4 माइनस आई स्क्वेयर। डन। अभी आई स्क्वेयर की वैल्यू, आई स्क्वेयर हमें बारी बारी से आएगा, अभी सबको याद रह गया होगा। आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है ना, हमारा आयोटा आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वेयर इज -1, है ना, ये याद रखना है। तो यहाँ पर आई स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे माइनस, सो हियर यू टू रिप्लेस दिस आई स्क्वेयर विथ -1, सो दिस वन इज 12 - 3, सो इट्स अ 9 प्लस, है ना, 12 - 3, ये डायरेक्ट आई स्क्वेयर में -1 कर देता हूँ, जो -3 होगा, सो 12 - 3 9, so it's a 9 plus 6i plus 6i 12i, और ये माइनस आई स्क्वेयर प्लस 1, so it's a 4 plus 1 5, so this is our division z1 by z2 इक्वल टू, है ना, इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, so it's a 9/5 plus 12/5 I, done? So this is the division of z1 and z2, clear? आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर है ना, वो आपको ये फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी, रियल पार्ट्स को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट करके लिखना है। डन। नाउ ये था आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, उसके बाद हम सम्स करेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छी तरह से समझना है, दैट इज पावर ऑफ आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज पावर, पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई मीन्स आई का कोई भी पावर आपको दे दे, इसका आंसर आपको निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज अवर आई, ये हमने स्टडी किया था, आई होता है आयोटा ना, नॉट कोटा, इट्स आयोटा, आपको सिर्फ साइंस वालों को कोटा ही दिखता है। सो आई इज आयोटा, दिस इज इक्वल टू, आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है -1 और स्क्वायर रूट में होता है, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो सबको आई की पावर 1 आ गई, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, वो मैंने आपको बताया था कि आई होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये वैल्यू सबको याद रहेगी। उसके बाद आई की 2 पावर, आई स्क्वेयर, ये भी हमने बहुत बार यूज कर लिया, तो आई स्क्वेयर की पावर क्या होती है, कहीं भी आर स्क्वेयर होगा तो क्या रिप्लेस करेंगे, -1 से, है ना, ये यूज किया था, ये आई स्क्वेयर -1, तो आई की 2 पावर की वैल्यू भी सबको याद रहेगी, क्या होती है, -1। यस। और आई की 3 पावर कौन बताएगा मुझे, आई की 3 पावर, आई क्या आई, आई की 3 पावर होती है आई स्क्वेयर इंटू आई, और आई स्क्वेयर होता है -1, तो होगा -आई, है ना, आई की 3 पावर, आई की 3 पावर क्या होगी, -आई, क्लियर। आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, और आई की 3 पावर क्या होगी, -आई, -आई, डन। और बताओ आई की पावर 4 क्या होगी, आई की, आई की पावर 4 होगी आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर क्या होता है, -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1 क्या होता है, 1, तो आई रेस टू 4 होगा 1, तो इतना पावर सबको याद हो गया, है ना। तो अभी आपको देखो ये याद रखना है, यहाँ यहाँ पर आता हो ना, यहाँ पर यूजिंग दिस स्पेस, तो हियर आपको याद रखना है कि आई की जो 4 पावर है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा आई रेस टू 4k प्लस 1, आई की कोई भी पावर दे दी आपको, है ना, 28, 250, 1000 कुछ भी, तो आपको करना है आई रेस टू 4k प्लस 1, तो आई रेस टू 4k प्लस 1 आपका होगा आई, क्या होगा, है ना, k इज वन कांस्टेंट, तो आपको i को 4k पावर में लिखना है और प्लस 1, तो होगा i। इसको कैसे यूज करना अभी समझ में नहीं आया, तो हम इसको एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन आप अभी इसको नोट करके रखो, है ना, i रेस टू k प्लस 1, तो i रेस टू 4, i रेस टू 4k, तो 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4, तो i रेस टू 4, 8, 10, 12, वो सब क्या होगा 1, और प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, i।
तो आई की कोई भी 4k प्लस 1 पावर का आंसर क्या होगा? आई। ये समझ में आ गया है ना? और आई क्या होता है? आई क्या होता है? -1, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और उसके आगे आई रेस टू 4k प्लस 2 आ जाए, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 आए, तो आई रेस टू 4k, 4k इज 1, और आई स्क्वायर साथ में आएगा, तो आई स्क्वायर बचेगा, और आई स्क्वायर क्या होता है? -1। सो आई रेस टू 2k प्लस, हाँ, आई रेस टू 2k प्लस 2 की पावर ऑलवेज क्या होगी? -1। डन। उसके बाद आई रेस टू 4k प्लस 3, तो आई रेस टू 4k प्लस 3 क्या होगा? आई रेस टू 4k इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब क्या होगा? -i। डन। और लास्ट में आई रेस टू 4k प्लस 4, 4k प्लस 4, तो 4k प्लस 4 वो 4 का ही मल्टीपल होगा, और वो तो 1 ही आता है, सो इट्स आई रेस टू 4 इज ऑलवेज 1। डन। तो ये आई की डिफरेंट पावर आपको ये अभी नोट करके देखो, हम जब एक्सरसाइज करेंगे इसमें यूज करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी शायद बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना? कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी है ना, नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ गलत सिखा रहा हूँ, है ना? क्या कर रहा हूँ मैं? आपको कुछ गलत सिखा रहा हूँ, और मेरी मिस्टेक कहाँ पर होती है ना, वो आपको देखना है और मुझे आंसर करना है। सो बी फोकस ऑन माई सम एंड फाइंड आउट माई मिस्टेक, कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक गलत रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो आप सब लोग अभी तैयार हो? हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। देखो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, square root of real negative real number. So let me start with 1। 1, 1 इक्वल टू, 1 को तो सब पता है ना क्या होता है? 1, द लोएस्ट नेचुरल नंबर 1। डन। सो कैन आई राइट, कैन आई राइट दिस 1 एज ए स्क्वायर रूट ऑफ 1? नाउ कैन आई राइट दिस 1 एज ए -1 मल्टीप्लाई -1, -1 into -1 1? So can I write, suppose two numbers are in multiplication, a into b. So can I write this square root of a into b as a square root of a into square root of b? So here it's a square root of -1 into square root of -1, है ना? ये सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं किया। Now tell me what is square root of -1? Square root of -1 क्या होता है? हाँ, I, है ना? Square root of -1 is I. So can we write this square root of -1 as a I into square root of this -1 as a I? Done. So what is I into I? Very good. I square. Now tell me what is I square? I square -1. What is our right hand side? 1. So here our 1 is equal to -1, है ना? हाँ, बस तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, और आपको इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दे देना है। ठीक है? ये कहाँ से आ गया और क्यों आ गया, ये आपको होमवर्क में करना है। मतलब सर बस मैंने ये प्रूव करके दिख दिया, आपको ढूंढना है कहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की, कहाँ पर क्या किया है। ये 1 इक्वल टू -1 तो कहीं पर भी नहीं होता है ना, इंडिया में भी नहीं होता है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूएई में, या फिर यूएसए में जाओ तो भी ये 1 इक्वल टू -1 नहीं होता है। तो ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया गलत, तो ये क्यों आ गया वो आपको निकाल के लाना है। डन। सो नाउ नेक्स्ट वन। हाँ, अभी मुझे कुछ नहीं डिस्कस करना है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। इसको आपको आंसर देना है मुझे बाद में, लेक्चर के बाद। ठीक है? सो नाउ राइट डाउन सम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आइडेंटिटीज जो हम अलजेब्रा में यूज करते थे वही है।
इसको आप सिर्फ नोट डाउन करके लिखो। सो आइडेंटिटीज आर, जो हमारे पास जो फॉर्मूला थे ना सब एक्सपांशन के, वही है। सो z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। सो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। माइनस में भी होता है, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 z1 z2, 2 पावर हो गया। उसके बाद z1 प्लस z2 क्यूब, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज जो 8 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में स्टडी की थी ना, वही है। यहाँ पर मैं कुछ लिखवा रहा हूँ और बाकी कुछ कहीं पर भी यूज में आए तो आपको निकालने के नोट डाउन कर देना है। क्यूब का क्या होगा, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर होगा z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 इंटू z1 प्लस z2। माइनस के लिए भी होता है, z1 माइनस z2 क्यूब इक्वल टू z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 z1 माइनस z2। डन। क्यूब के लिए थी, और एक ये भी आइडेंटिटी थी, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर z1 माइनस z2 z1 प्लस z2, है ना। ये सब आइडेंटिटीज हमारी एक्सरसाइज में यूज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज, ये समझ में आ गया आइडेंटिटीज ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, डिवीजन कैसे फाइंड करना है, डिफरेंट पावर्स ऑफ आई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। For example, we are having complex number z equal to a plus ib, and complex conjugate of z is a minus ib। ये दोनों नंबर है। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज रिटन बाय मोड z, है ना। ये भी आपको पता है, मोड में लिखेंगे। और इसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा। सो मॉड्यूलस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ square of real part plus square of imaginary part. So imaginary part is imaginary part is b and real part is a. So it's a square plus b square. Done. और similarly ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसमें भी स्क्वायर रूट करेंगे, तो इट्स a प्लस आई बी, और ये माइनस एंड b के साथ होगी, तो a स्क्वायर, है ना, ये होगा a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So modulus of conjugate is also square root of a square plus b square. Done. तो इसको ऐसे मॉड्यूलस निकालेंगे। और यहाँ एक और भी प्रॉपर्टी सामने निकल के आई कि क्या, कि नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, इक्वल। सो मॉड्यूलस ऑफ मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मोड ऑफ इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एंड एक तीसरी भी प्रॉपर्टी है उसके साथ में कि हम माइनस जेड कर देना, वो भी क्या होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो नेगेटिव नंबर होगा वो भी प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोड ऑफ z इक्वल टू मोड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट z। क्लियर। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना। ये प्रॉपर्टी 1 थी, ये इसकी मोड की डेफिनेशन थी, ये प्रॉपर्टी 1। सेकंड प्रॉपर्टी, z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 अपॉन z, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टडी किया था 1 अपॉन z। सो 1 अपॉन z इज a प्लस आई बी, और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में होगा a माइनस आई बी
एंड डिनोमिनेटर में z और उनके जो कॉम्प्लेक्स नंबर और उनका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसका मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, तो देखो अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, z इनवर्स इज इक्वल टू a minus ib. What is a minus ib? A minus ib is nothing but the complex conjugate z bar upon what is a square plus b square. स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो मोड z होगा। डन। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉन्जुगेट का मोड, और उसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, z होगा z, या फिर z बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज z स्क्वायर मोड z स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट होगा तो z लिखेंगे। सो z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन मोड z स्क्वायर। व्हाट इज z इनवर्स? z इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन z होता है ना। तो यहाँ पर देखो 1 बाय z लिख रहा हूँ, 1 बाय z इक्वल टू z बार अपॉन मोड z स्क्वायर। डन। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या होगा, ये 1 के साथ मोड z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और ये z इंटू जेड बार होगा यहाँ पर राइट साइड पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड z स्क्वायर, है ना। दिस इज दी सेकंड प्रॉपर्टी। आई समझ में ना, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये से स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मोड जेड होगा, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मोड जेड का स्क्वायर, है ना। वो रिप्लेस किया है यहाँ पर मोड जेड का स्क्वायर, और जेड इनवर्स को रिप्लेस किया 1 बाय जेड से। तो जेड इनवर्स इक्वल टू 1 बाय जेड, तो ये जेड मल्टीप्लाई हो गया ये जेड बार के साथ, और ये 1 मल्टीप्लाई हो गया मोड जेड स्क्वायर के साथ। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। डन। So this is the property of modulus, second property. Now remaining few properties, वो सिर्फ लिखने के लिए लिख रहा हूँ, वो आप देख के समझ जाएंगे। So property number 3, इसको आप नोट डाउन करके रखना। So third property of modulus, mod z1 by z2, so that is equal to mod z1 by mod z2, providing that z2 is not equal to 0, ना, डिनोमीटर में वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, मोड z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज मोड z1 इंटू मोड z2। डन। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 z2 बार। एंड सिक्स प्रॉपर्टी माइनस होगा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस mod z2 square, here it's a minus twice of real part of z1 z2 bar। Done। So these are the certain properties of modulus। बस इतना स्टडी करना था। और एक छोटा सा पॉइंट है, हो जाएगा शायद लास्ट 1 मिनट। सो इफ मोड z इक्वल टू 0, if magnitude of any complex number is 0, that means its real z is 0 and its imaginary z is 0, है ना। कैसे होगा ये? फॉर एग्जाम्पल, इफ z is equal to a plus ib, so mod z, so the square root of a square plus b square, and here magnitude is 0, so a square plus b square is 0 and both are square, that means the magnitude of this complex number is 0 when a is 0 as well as b is 0. That means real part of complex number is 0 as well as imaginary part of complex number is 0. Then and then magnitude is 0. So we can say that if magnitude of any complex number is 0, then its real part is 0 as well as imaginary part is 0. Done. So this is the property number 7. And last property, eighth property,
that is inequality in complex number. Inequality in complex number. So what is inequality in complex number? For example, to compare any real numbers, we are directly writing that 2 is less than 4, or we can say 11 is greater than 3. No, we can directly write the inequalities for this real number. But for the complex number, we can't write z1 is less than equal to z2. No, we can't compare two complex numbers. Why? Because in the next lecture we'll discuss that complex number represent point in argon plane. And a complex number represent point in plane, argon plane. So z1 is nothing but the one point and z2 is nothing but the another point. So we can't compare 2 points. And to write the inequalities between two complex number, or we can say we can compare the complex number by its magnitude. So we can't directly compare these two complex number. To compare the complex number, we have to compare this magnitude. So mod z1 is less than mod z2, you can write, or you can write mod z1 is greater than mod z2. Done. So complex number can be compared only in magnitudes, or we can compare only magnitudes of complex number. Clear, students? So this is the short introduction regarding our exercise 5.1.